ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیع سنسان میدان کے اوپر سے اکیلے گزر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اچانک آسمان کی طرف سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے محمد! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکار سن کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے بڑا تخت خلاؤں میں سے نمایاں ہو رہا ہے اور اس پر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت عظیم الشان شکل میں جلوہ فرما ہے۔ اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کبھی اس صورت میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے کانپتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ، جلدی سے میرے جسم کو کپڑے علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لینے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لے کر آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ٹھیک اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ غیب سے ایک آواز آئی، گویا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہو، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو اور شرک و کفر سے دور رہو۔ اس کے بعد سے باقاعدہ وقت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے یاد کر لیتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دیتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوراً اسے یاد کر لیتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تبلیغ کا حکم اور اس کے ابتدائی احکام نازل ہونے کے بعد ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے خدیجہ، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو؟ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتی ہوں۔ تب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ، کفر سے توبہ کر کے اس بے شکل سب سے طاقتور واحد اللہ پر ایمان لیا اور دل سے اسی کی عبادت و بندگی کر۔ تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور شرک و کفر سے توبہ کی۔ سبحان اللہ! اسلام کی تبلیغ کا حکم ملنے کے بعد حضرت چڑھ کر قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر تمہیں حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تب قریش کے سب لوگ بے آواز بول اٹھے، یقیناً کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو الامین، امانت دار ہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میری بات سنو، اگر تم ایک بے شکل واحد اللہ پر ایمان نہ لائے تو تم سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی قریش کے لوگ غصے سے بھڑک اٹھے اور سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ وہاں موجود بدبخت ابو جہل نے کہا، اے محمد، کیا تم ہمیں یہ معمولی اور فضول بات سنانے کے لیے بلائے تھے؟ یہ کہہ کر ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زبان میں گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن قریش کی مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمانے، قریش کے لوگوں، تم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ان مورتیوں بتوں کی پوجا کر رہے ہو، حالانکہ ان سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان مورتیوں کے پاس نہ کوئی بھلا کرنے کی طاقت ہے، تانے کی قدرت، جو اپنے جسم سے ایک مکھی یا مچھر بھی ہٹا نہیں سکتے، وہ تمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور اگر چاہو تو آج ہی انہیں توڑ سکتے ہو۔ تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے کہ جنہیں تم نے خود بنایا وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے قریش کے لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ یہ کائنات، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جن، انسان، فرشتے، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندر اور اس میں موجود مخلوقات، یہ سب کچھ جس نے پیدا فرمایا ہے وہ ہمارا سب سے طاقتور، سب سے عظیم رب ہے۔
अल्लाह ताला वही हमारा सच्चा माबूद और अकेला रब है। वही सबको पैदा करने वाला है और वही सबको मौत देने वाला है। कायनात की हर चीज का पालने वाला और हिफाजत करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मैं उस अजीम खालिक की तरफ से भेजा गया एक नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना पैगाम पहुंचाने, उसके अहकाम व मना कर दी बातें बताने के लिए भेजा है। लिहाजा अगर तुम मेरी बात सुनोगे और उसी के मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। ऐ कुरैश के लोगों, तुम सब इस बेशक्ल सबसे ताकतवर अल्लाह पाक पर ईमान लाओ और मुझे उसका नबी मानकर मेरी मार्फत उसके अहकाम व फरमाइन को सुनो और अमल करो, ताकि आखिरत में तुम जहन्नम की आग से बच जाओ और जन्नत में दाखिल हो सको। तुम सब दिल व जान से यकीन के साथ जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से यह बातें सुनने के बाद मानना तो दूर की बात, उनमें से कोई हंसकर कहने लगा, मोहम्मद तो पागल हो गया है। और कोई गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगा, कितनी बड़ी जुर्रत है तुम्हारी, तुम हमारे और हमारे आबा व अजदाद के देवी देवताओं की तौहीन करते हो। इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हें कहां से मिली? इन फजूल बातों को छोड़ दो वरना बाज आ जाओ, वरना हमारे माबूद तुम्हें जरूर तबाह कर देंगे। मजलिस में अबू लहब और अबू जहल नामी दो कुरैशी सरदार भी मौजूद थे। यह दोनों ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दोनों शख्स निहायत ही संगदिल काफिर थे। वह गुस्से से भड़क उठे और फौरन दूसरे कुरैशी लोगों को हुक्म देने लगे, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद को अभी सजा दो ताकि वह आइंदा कभी ऐसी बातें करने की जुर्रत न करे। इन दो कुरैशी सरदारों के हुक्म पर बदबख्त कुरैशियों का एक गिरोह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि झपट पड़ा और उन पर शदीद जुल्म व सितम ढाने लगा। उनके इस वहशियाना जुल्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हो गए और खून बहने लगा। फिर उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर अब भी बाज न आए तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। यह कहकर वह वहां से चले गए। इस वाकये के बाद मक्का की हालत यह हो गई कि जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर निकलते, लोग शोर शराबा करते हुए उनके पीछे भागते और उन पर कंकरियां फेंकने लगते। कुछ लोग उन्हें पागल समझकर जोर जोर से हंसने लगते। जब वह नमाज के लिए खड़े होते तो उनके जिस्म पर मिट्टी और खाक डाल दी जाती। बाज लोग मुर्दा जानवरों की आंतें लाकर उनकी गर्दन पर डाल देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रास्तों से गुजरते, वहां के रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम जुल्मों को खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने किसी से शिकायत न की और न ही उन पर नाराज हुए। वह सिर्फ यह सोचते रहे कि यह लोग लाइल्म हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब उन्हें शूर आएगा तो वह जरूर बाज आ जाएंगे। अब वह नासमझ इतना भी जुल्म हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज से 1 इंच भी पीछे हटने का नाम न लिया। वह मुसलसल अपने पैगाम को पहुंचाते रहे। जो लोग उन पर जुल्म करते, उनसे भी नरमी से बात करते और मीठे अंदाज में समझाते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सब्र व इस अमूली बर्दाश्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे और बुतों की पूजा छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु और दूसरे कई अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की तादाद 40 तक पहुंच गई। जब बहुत से लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश के लोग कुछ हो गए। जब उन्होंने देखा कि मामला अब संजीदा होता जा रहा है तो उनके अंदर से एक शख्स बोल उठा, हम मोहम्मद को इतना दुख दे रहे हैं, इतने किस्म के जुल्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वह अपने राबर भी पीछे नहीं हट रहा। अब ऐसी हालत में हम क्या करें? क्या हमारे आबाओ अजदाद का दीन दुनिया से मिट जाएगा? फिर सब लोग इस बात पर फिक्रमंद हो गए।
सभी इस मामले को लेकर बेहद बेचैनी महसूस करने लगे। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से कैसे रोका जाए, इसका कोई मुनासिब तरीका उन्हें सूझाई न दिया। फिर भी उनके दरा जारी रहा। उनमें से एक ने कहा, अगर मोहम्मद को इसी तरह दिन ब दिन मौका और सह मिलती रही तो हमारे बाप दादाओं का मजहब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान जैसे लोग आपस में मशवरा करके अपने ही कबीले के एक समझदार और चालाक रहनुमा उतबा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजने का फैसला किया। उतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पहले तो बड़े दिल लुभाने वाले अंदाज में बातें करने लगा ताकि आपको किसी तरह काबू में किया जा सके। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, तुम तो हमारे पराए नहीं हो, तुम तो हमारे ही कबीले के आदमी हो और तुम एक मुअज्जज शख्स के नवासे हो, एक इज्जतदार के बेटे हो, इसीलिए हम तुम्हें खास तौर पर अजीज रखते हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे इस्लाम की दावत की वजह से लोग तुम पर जुल्म करने लगे हैं, तुम पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। ए मोहम्मद, तुम यह सब बातें क्यों करते हो? तुम बेवजह हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करते हो, उन पर नुक्ताचीनी करते हो, हमारे आबा व अजदाद के दीन को झूठा करार देते हो। यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम्हारी बातों से हमारे दरमियान फूट पड़ चुकी है। हम खुद अपने कबीले के फर्द होने के बावजूद लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई हमें कुछ न कुछ कहता है। इसीलिए मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। तुम अपना असल मकसद मुझे खुलकर बताओ। ए मोहम्मद, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी उम्मीद क्या है? अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ, हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम पूरी जिंदगी दोनों हाथों से खर्च करोगे फिर भी खत्म ना होगा। अगर तुम्हें इज्जत, मकाम या सरदारी चाहिए तो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा सरदार मान लेंगे। हम तुम्हारी बात पर उठेंगे बैठेंगे, तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। और अगर तुम किसी हुसीन औरत से शादी करना चाहते हो तो वह भी बताओ, हम तुम्हारी शादी अरब की सबसे हुसीन औरत से करा देंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम हमारी बुराई न करो, हमारे माबूदों पर झूठे इल्जाम न लगाओ। बताओ ए मोहम्मद, तुम्हारे दिल का असल मकसद क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उतबा की बातें सुनी तो जान, आपने अभी जो कुछ फरमाया वह मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल में इन चीजों की न कोई ख्वाहिश है न कोई लालच। यह दुनियावी चीजें, माल व दौलत, सल्तनत, क़यादत, शोहरत या हुसीन बीवी, यह सब मेरे नजदीक बेवकफत हैं। इनकी कोई कद्र व कीमत नहीं। यह चीजें इंसान के लिए न फलाह ला सकती हैं न खैर। बस इनके पीछे दौड़ना इंसान का काम नहीं। इंसान की असल जिम्मेदारी तो यह है कि सबसे पहले अपने खालिक को पहचाने, फिर उस खालिक ने जो अहकाम हमारी भलाई और फलाह के लिए दिए हैं उन पर अमल करें। अगर ऐसा न किया तो जैसे यह दुनियावी जिंदगी बेकार गुजरेगी, वैसे ही आखिरत की जिंदगी भी बदतरीन अजाब और बेचैनी में गुजरेगी। चचा जान, आप लोग अपने हाथ से बुत बनाते हैं, फिर उसी को अपना रब मानकर उसकी इबादत करते हैं। थोड़ा सा तो सोचिए, इससे ज्यादा मजाका खेज और क्या बात हो सकती है। हालांकि आप सब बहुत अक्लमंद और समझदार लोग हैं, बहुत कुछ जानते और समझते हैं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया कि यह काम आप क्यों कर रहे हैं? चचा जान, जान लीजिए कि हमारा असल रब, हमारा सच्चा मालिक वही एक अल्लाह है जो बेमिसल, बेशक्ल, हर चीज पर कादिर है। उसी ने हमें पैदा फरमाया, वही हमें रिज़्क़ कर देता है, हमारी परवरिश करता है। उसी की मेहरबानी से हम हर नेमत से फैज़याब हो रहे हैं। हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मर्जी यह है कि हम उसके मोती होकर उसकी पैरवी करें। बस उसी के जरिए हम अपनी उखरवी जिंदगी की कामयाबी और राहत हासिल कर सकते हैं। और उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मुझसे पहले भी कई अंबिया और रसूल आ चुके हैं, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि आप सब इस कादिर का नबी तस्लीम करें और मैं अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के सामने जो अहकाम और शरीयत पेश करता हूँ उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। मैं इसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहता। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की कुछ आयतें तिलावत फरमाकर उतबा को सुनाई और फरमाया, चाचा जान, जो कुछ मैंने अभी पढ़ा यह मेरे जाती कलामात नहीं है, बल्कि यह सब उस अजीम हस्ती अल्लाह पाक की पाकीज़ा वही है
उतबा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कीमती बातें कभी नहीं सुनी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसे अनमोल कलामात और कुरान मजीद की अजीम आयात सुनकर उतबा के दिल में गहरे ख्यालात ने जन्म लिया। उसका दिल चाहा कि वह उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उसे याद आया कि अबू जहल और अबू लहब ने उसे यहाँ भेजा है। जब उसकी याद आई तो उसके दिल में हिचकिचाहट पैदा हो गई। तब उतबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो कुछ तुमने फरमाया वह बेशक हक है और निहायत आला व अरफ कलामात हैं। तुम्हारी हर बात मेरे दिल को लगी है, लेकिन तुम जरा इंतजार करो, मैं गौर करता हूँ कि इस बारे में क्या करना मुनासिब होगा। फिर उतबा अब्बू जहल और अब्बू लहब जैसे कुरैश के सरदारों के पास एक अजीब व गरीब कैफियत में हाजिर हुआ और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, आज मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जो बेशकीमत बातें सुनकर आया हूँ, ऐसी बातें मैंने अपनी पूरी, तुम लोग उसे कुछ भी समझो, लेकिन सच यह है कि वह बहुत ही नेक इंसान है, तुम लोग उस पर जुल्म न करो। उतबा की यह बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। अबू जहल बोल उठा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा को जादू कर दिया है, वह तो बहुत खतरनाक जादूगर है। अगर किसी और ने उसके पास जाने की गलती की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी उतबा की तरह कर देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत इसी तरह जारी रखे हुए थे। जहां इलानिया मुमकिन था वहां इलानिया, और जहां छिपकर करना जरूरी था वहां छिपकर इस्लाम की तबलीग हो रही थी। इधर कुरैश ने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जुल्म, न ज्यादती, न खौफ व धमकी और न ही किसी किस्म के लालच से रोका जा सकता है। वह अपने मिशन में वैसे ही लगे हुए हैं। यह सब देखकर वह बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे यह मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिल आखिर वह सब मिलकर एक तरकीब पर मुत्तफिक हो गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब के पास जा पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शिकायतें लेकर कहने लगे, ए सरदार, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जमात में जो फसाद और बेचैनी फैलाई है उससे हम बहुत दुखी हैं। हम तो सिर्फ आपकी इज्जत और मकाम की वजह से हमारा चुप रहना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे बाप दादा के दीन को झूठा कहता है, हमें और हमारे आबाओ अजदाद को दोजखी करार देता है। यह सब खामोशी से बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। आप खुद भी यह बात बखूबी समझते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप उसके सरपरस्त हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और करीबी हैं, लिहाजा आप उसको नसीहत करें, समझाएं कि वह इन बातों से बाज आ जाए और दोबारा कभी ऐसे कलामात न कहे। अगर वह आपकी बात न माने तो फिर आप उसको अपने घर से निकाल दें। अबू तालिब ने उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ ऐसा इत्मीनान दिलाया कि ठीक है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाऊंगा कि वह इस मामले में एहतियात बरते। कुरैश अबू तालिब की बात सुनकर किसी कदर मुतमिन होकर वहां से चले गए। फिर चचा अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उसे तन्हाई में बुलाकर निहायत नर्म लहजे में फरमाया, बेटा मोहम्मद, तुम कुरैश के देवी देवताओं को बुरा कहते हो, उनकी बुराई करते हो। कुरैश के मजहर शदीद नाराज है। मुमकिन है कि वह गुस्से में आकर तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, बेटा, यह बातें छोड़ दो। बिला वजह अपनी जान को खतरे में डालने का कोई फायदा नहीं। जब वह तुम्हारी बातों को अहमियत ही नहीं दे रहे तो तुम्हें क्या जरूरत है कि खुद को मुसीबत में डालकर उनका भला करो। मेरी बात यह है कि बेटा, अगर तुम्हारा दिल उनके देवी देवताओं की पूजा करने को नहीं चाहता तो मत करो, लेकिन जो लोग उनकी इबादत करते हैं या उसे अच्छा समझते हैं उनके खिलाफ बात करके हंगामा बर्पा करने की जरूरत नहीं। तुम जरा सब्र व तहमुल से काम लो। रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहरबान सरपरस्त चचा अब्बू तालिब के मुंह से यह बातें सुनकर जरूर दिल गिरफ्ता हुए, लेकिन उनके हौसले और अज़्म में कोई कमी ना आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बू तालिब से फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इंसानों के दरमियान सच्चाई पेश करने के लिए दुनिया में भेजा है। जब तक मेरे जिस्म में जान है मुझे अपना यह फरीजा निभाना होगा। किसी के लालच या किसी के खौफ से मैं अपने फरीजे से गाफिल नहीं हो सकता। या तो मैं सच्चाई को लोगों में फैलाकर कामयाब हो जाऊंगा
या अगर इस राह में मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं वह भी कर दूंगा। और चचा जान, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप ही मेरे सबसे बड़े खैर ख्वाह और असल सरपरस्त हैं। आपका यह एहसान मेरे दिल में हमेशा याद रहेगा। लेकिन चचा जान, अगर आप चाहते हैं कि मैं हक को बातिल के दबाव में छिपा दूं, तो मैं इस पर हरगिज राजी नहीं हूं। अगर इस सूरत हाल में आप मेरे साथ खुद को परेशान महसूस करते हैं, तो मेरे पास इसका कोई हल नहीं, लेकिन हर हालत में मुझे सच बोलने वाला ही रहना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से इस पुख्ता अज़्म व इस्तिक़लाल का बयान सुनकर अबू तालिब न सिर्फ जरा भी नाराज या नाखुश नहीं हुए, बल्कि वह बेहद खुश हुए, क्योंकि वह पहले ही जानते थे कि उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अबू तालिब ने अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, ठीक है बेटा मोहम्मद, तुम अपनी बात पर कायम रहो और अपना फरीजा अदा करते रहो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक अबू तालिब जिंदा है, कोई भी शख्स मेरे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर अबू तालिब के दिलासा देने पर कुरैश यह समझे कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग का सिलसिला बंद कर देंगे और उनके माबूदों के बारे में कुछ न कहेंगे, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरखिलाफ हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और बुतों के बारे में भी वाज़ेह अल्फाज में फरमाते रहे, जिस पर कुरैश एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त नाराज हो गए। अब की बार उनका गुस्सा सिर्फ आप सल्लल्लाहु था, बल्कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परोकारों और नए मुसलमान होने वालों पर भी सख्त जारहाना हो गए। कुरैश मक्का अब जहां जिसको पाते वहीं उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ देते, और चूंकि मक्का के तमाम कुरैश दुश्मन बन चुके थे, लिहाजा तन्हा अबू तालिब उन सब के खिलाफ क्या कर सकते थे। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों की पेशकश कबूल कर लेते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बन जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम व सुकून में कोई कमी न रहती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबतों से भरा हुआ, तकलीफों और इम्तिहानों वाला रास्ता चुना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मिशन के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे कि लोगों को दीन का नूर दिखाएं, चाहे इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ही आजमाइशों का सामना क्यों न करना पड़े। दूसरी तरफ काफिर कुरैश दरिंदों की तरह इस्लाम कबूल करने वालों पर टूट पड़े और उन पर मजालिम की इंतहा कर दी। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए किसी को कोड़े मार मार कर जिस्म जख्मी कर दिया, किसी को दोपहर के तेज धूप में तपते हुए रेगिस्तान पर लिटाकर उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिए, किसी की खाल चाकू से चीरकर उस पर नमक छिड़क दिया, किसी को कैद करके 5-7 दिन तक खाने पीने से महरूम रखा और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इन मजलूमों का हौसला और ईमान इस कदर मजबूत था कि वह हर जुल्म सहने को तैयार थे, लेकिन दीन इस्लाम छोड़ने पर कभी राजी न हुए। एक दिन रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सहन में बैठे लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, दरख्त, पहाड़, जिन्न व इंसान सबका खालिक अल्लाह ताला है। वह बेमिसाल, बेशक्ल और हर चीज पर कादिर है। सिर्फ वही इबादत के लायक है। बुतों की पूजा का भला कर सकते हैं, न बुरा। इसी वक्त कुछ कुफ्फार दौड़ते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। यह हालत देखकर हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु नामी एक मुसलमान दौड़ते हुए आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के हाथों से बचाने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुफ्फार की तादाद बहुत ज्यादा थी और वह सब के सब मुसल्लह थे, फिर भी हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जान पर खेलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया, लेकिन खुद को न बचा सके और कुफ्फार के हाथों शहीद हो गए।
यही हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद थे। सुभान अल्लाह।